بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ آئیں جلدی سے پہلے ایپیسوڈ پڑھتے ہیں، دین پھر بات کرتے ہیں۔ یس بردر، آپ یہ فائنل کر دیں۔ وہ لڑکیاں جو سامنے سے آ رہی ہیں انہیں پرچیز کرنا ہے یہ لہنگا، اور آپ اس گرے کپڑے والی کو اس کونے میں چینجنگ روم میں بھیجیں گے، اوکے؟ یس سر، اوکے سر، گڈ۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گیا۔ حیا اور ریمی سارا مال گھومتی دوسرے فلور پر آ رہی تھی جب ریمی کے موبائل پر میسج آیا۔ اس نے موبائل اوپن کرتے میسج پڑھا اور چند سیکنڈ ارد گرد نگاہ دوڑاتے حیا کو لیتی سامنے والی شاپ میں گھس گئی۔ چند ایک ڈریسز دیکھنے کے بعد اس نے وہی ڈریس چنا جو وہ پہلے حیا کے لیے پسند کر کے جا چکا تھا۔ ریڈ چولی اور میرون لہنگے میں گولڈن کلر کے موتیوں کا عمدہ کام کیا گیا تھا۔ لہنگے کو دیکھ کر دونوں کی آنکھیں چندے آ گئی۔ بلا شبہ بہت خوبصورت لہنگا تھا، حیا کو بھی بہت پسند ہے۔ چلو حیا، تم اسے پہن کے چیک کرو تاکہ اگر کوئی کمی بیشی ہو تو اسے پورا کر دیا جائے۔ اوکے یار میڈم، آپ وہ اس کونے والے روم میں جا سکتے ہیں۔ لڑکے کو گائیڈ کرنے پر وہ بمشکل لہنگا سنبھالتی چینجنگ روم میں آئی۔ لہنگا زیب تک کرنے کے بعد جو ہی اس کی نگاہ دیوار میں لگے شیشے پر پڑی تو اپنے بالکل پیچھے کھڑے وجود کو دیکھ کر اس کی چیخ بلند ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے حیا کے منہ پر ہاتھ رکھا اور شیشے میں ابھرتا اس کا خوبصورت سراپا نظروں کے ذریعے دل میں اتارنے لگا۔ اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانے لگا۔ حیا کی دھڑکنیں بڑھنے لگی۔ وہ بہت مشکل سے بولنے کے قابل ہوئی۔ آپ یہاں کیسے؟ تم اور تو کہیں لفٹ ہی نہیں کروا رہی تھی مسز سعد رضا میر؟ تو پھر ہمیں یہی طریقہ اپنانا پڑا اور تمہیں دلہن بنے دیکھنے کا حق صرف میرا ہے، تو سب سے پہلے میں نے ہی دیکھنا تھا نا۔ سعد آنکھوں میں محبت کے ڈھیر سارے جگنوں سے جائے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ حیا کا رخ اپنی طرف کرتے اس کی پیشانی پر پیار کی مہر ثبت کرتے شرارت سے گویا ہوا۔ حیا اس کی وارفتگیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے نگاہ جھکا گئی تھی۔ پلیز مجھے جانے دے، ریمی میرا انتظار۔ وہ احسن کے ساتھ چلی گئی ہے، سعد ہمیں ایسے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا؟ پھر میں کس کے ساتھ جاؤں گی؟ حیا رو دینے کو تھی۔ پاگل، اپنے شوہر کے ساتھ، اور ٹینشن لینا چھوڑ دو۔ تمہیں اس روپ میں دیکھتے رہنے سے دل تو نہیں بھر رہا، لیکن چلو شاباش، چینج کرو پھر چلتے ہیں۔ لیکن ریمی نے فٹنگ وغیرہ دیکھنی تھی نا۔ اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھی۔ تو جانے ساتھ میں نے دیکھ لیا، میرا دیکھنا ضروری ہے نہ کہ کسی اور کا، اور مجھے تم اتنی پیاری اور پرفیکٹ لگ رہی ہو کہ میرا دل چاہا کہ اب بھی رخصتی کروا کے لے جاؤں۔ اس سے پہلے میں واقعی اس قدم کے بارے میں سیریس ہو جاؤں، جلدی سے چینج کر لو۔ اس کی اتنی کھلی گفتگو پر حیا کے چہرے پر حیا کی لالی گھل گئی۔ وہ اپنی بے اختیار اپنی نگاہ جھکا گئی۔ چلو شاباش، لیکن میں یہاں کیسے؟ مطلب آپ پلیز باہر جائیں۔ ساتھ کو یہیں جم کر کھڑے دیکھ کر اس کو بولنا مشکل لگ رہا تھا۔ کچھ دن پہلے وہ نکاح کے خوبصورت بندر میں بن چکے تھے۔ اف اللہ میاں، مجھے کیسی بیوی سے نوازا ہے جس کی شرم اور جھجک اپنے شوہر سے نہیں ختم ہو رہی۔ خیر کچھ دن اور پھر تمہاری ایک نہیں چلے گی اور میں سب کچھ ٹھیک کر کے معمول پر لے آؤں گا۔ سعد کی مانی کے اس گفتگو پر وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تو سعد کا فلک شگاف کہکا پڑا۔ چلو شاباش، ذرا جلدی آؤ، میں باہر انتظار کروں۔ سعد اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتا باہر نکل گیا تو حیا کا رکا ہوا سانس بحال کرتی مسکرا دی۔ وہ چینج کرنے کے بعد باہر آئی تو سعد کو اپنا منتظر پایا۔ سعد پیمنٹ پہلے کر چکا تھا۔ لہنگا پیک کروانے کے بعد وہ دونوں گاڑی تک آ گئے تھے۔ سعد نے حیا کے لیے ڈور کھولا تو وہ مسکراتے ہوئے بیٹھ گئی۔ دوسری طرف سعد نے سیٹ سنبھالی اور گاڑی آگے بڑھا لی۔ دن معمول کی طرح گزرے تھے۔ سلمیٰ کی کیئر کے بعد آبرو کی چوٹیں کافی حد تک ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ اسے نہ بیڈ سے ہلنے دیتی اور نہ ہی کسی کام کو ہاتھ لگانے لیتی، اور یہی بات آبرو کو اریٹیٹ کر رہی تھی۔ وہ ایک جگہ پر جم سی گئی تھی۔ وہ سکندر شاہ کے کمرے میں ہی تھی، اس کا رویہ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ شاہ نے اسے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ صبح کا نکلا رات کے واپس لوٹتا، کبھی ضرورت پڑنے پر مخاطب کرتا۔ وہ سب سے اکتا چکی تھی، کھلی فضا میں سانس لینا چاہتی تھی۔ اس نے وارڈروب کھولی تو جدید ڈیزائن کے کپڑوں سے بھری الماری دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ بی بی جی کچھ چاہیے کیا؟ وہ بی بی جی کچھ چاہیے کیا؟ آپ پیچھے ہو، میں آپ کو ڈھونڈ کے دیتی ہوں۔ سلمیٰ اسے الماری میں سردی کھڑے دیکھ کر فوراً آگے بڑھی۔ سلمیٰ یہ سب؟ اس نے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ بی بی جی یہ سب آپ کے لیے صاحب لے کر آئے۔ کیوں؟ اس نوازش کی کوئی خاص وجہ؟ وہ سخت تیور لیے باز پرس کرنے لگی تو سلمیٰ ہڑبڑا گئی۔ بی بی جی آپ کو ان کی ضرورت ہے تو یہ سب؟ مجھے سکندر شاہ کی کسی عنایت کی ضرورت نہیں، خالی کرو الماری اور میرے پرانے کپڑے لے کر آؤ۔ لیکن بی بی جی وہ سب صاحب نے پھینکوا دی ہیں، سلمیٰ نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ کیا مطلب پھینکوا دی ہیں؟ وہ ہوتا کون ہے یہ سب کرنے والا؟ کیوں کر رہا مجھ پر مہربانی ہے؟ نہیں چاہیے مجھے کسی کی ہمدردی، تم بھی دفع ہو جاؤ یہاں سے، جاؤ۔ آبرو ہذیانی انداز میں چیختی کپڑے پھینکنے لگی۔ بی بی جی پلیز آپ ٹینشن نہ لیں، میں نے کہا دفع ہو جاؤ۔ آبرو روتی ہوئی چیخ رہی تھی۔ اس نے سکندر شاہ کی کرم نوازی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ سلمیٰ نے شاہ کو مطلع کرنا ضروری سمجھا۔ وہ بھاگتی ہوئی شاہ کے پاس گئی۔ صاحب وہ بی بی جی بہت شور کر رہی ہے اور کمرے کی چیزیں بھی پھینک رہی ہیں۔ واٹ؟ شاہ نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے کمرے کی جانب دوڑ لگائی۔ آبرو جنونی انداز میں کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر رہی تھی۔ آبرو کیا کر رہی ہو؟ ہوش میں ہو تم؟
आबरू शाह ने इसे रोकने के लिए इसे बाजू से खींच कर पास किया तो वो और बफर गई। छोड़ो मुझे, नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दियाँ। क्यों कर रहे हो ऐसा? फिर कोई खेल रचाना चाह रहे हो? अब मैं तुम्हारे किसी खेल को कामयाब नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। वो एक झटके से खुद को छुड़वाती कारपेट पर एशट्रे का टूटा हुआ टुकड़ा उठा चुकी थी। अब्रू क्या पागलपन है ये? छोड़ो इसे। अब्रू मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, तुमने कोई बेवकूफ़ी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाह की जस्ट में इस तक पहुँचा इसे बिल्कुल भी होशो हवास में नहीं लग रही थी। खबरदार मेरे पास आए तो दूर रहो मुझसे, नफरत है मुझे तुमसे, घिन आती है तुम्हारे वजूद से। आबरू से 2 कदम पीछे होती हलक के बल चीखी तो शाह के कदम वहीं थम गए। ओके, नहीं आता तुम्हारे नज़दीक, तुम इसे छोड़ दो, फेंक दो। हाँ, शाह ने अपने कदम वहीं रोकते इसे टुकड़ा फेंकने का कहा, लेकिन वैसे सुनी कहानी थी। बहुत शौक है ना मेरा, मुझे इससे नफरत है ना। मेरे बाप ने गुनाह किया ना, मैं बदकिरदार बाप की बदकिरदार बेटी हूँ ना, बुरी हूँ, बहुत बुरी, नफरत के काबिल हूँ ना। वो चीखती हुई टुकड़ा कलाई पर रख चुकी थी। शाह की आंखें खौफ से फैल गई। आप लोग बेवकूफ़ी मत करो, फेंको इसे, दूर रहो मुझसे। वो सुरख अंगारा आंखों से इसे घूरती भी घुर्राई। मम्मा, मेरे बाप ने गुनाह किया था, मर्द था, इसने एक औरत की इज्जत का खिलवाड़ किया, तो तुमने भी वही आम मर्दों की वाली रविश अपनाई और मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई। मम्मा, मुझे मार दिया तो तुम सब बुज़दिल हो, बहुत बुज़दिल। तुम मर्द अपना बदला औरत से क्यों लेते हो? कमज़ोर है हम, ये इंसान नहीं, हमारे अंदर कोई एहसास नहीं, कठपुतली है ये, कोई खिलौना जिसे जब चाह खेला, दिल भर गया तो तोड़ के फेंक दिया। कौन है हम? कभी बाप के गुनाहों का कफ़ारा अदा करना होता है, कभी भाई की गैरत की भेंट चढ़ना होता है। अपनी पूरी ज़िंदगी तुम जैसे मर्दों की गुलामी में गुजार के पिलाकर खुद को मौत के घाट उतार देना। अब्रू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़। शान इसकी बंद होती आंखों में देखते आगे बढ़ना चाहा। नहीं नहीं नहीं, तो तुम सब मर्द जो सर उठाए गर्दन अकड़ाए चल रहे हो, ये सब हमारी वजह से। तुम सबके गुनाहों की पोटलियाँ अपने नातवा कंधों पर उठाए, अपने दिलो दिमाग पर बोझ डाले, तुम सबको सर उठाकर जीने दे रही है। तुम सबके किरदार छुपाए फिरती हैं, पागल जो ठहरी, बुज़दिल जो हुई, अपने मर्दों की खुशी के लिए और कभी इनकी ज़िंदगी के लिए खुद को भेंट चढ़ा देती हैं। ठीक कहते हो तुम सिकंदर शाह, फिर हूँ तो बदकिरदार की बेटी, बदकिरदार शौहर की बीवी। आंसू का गोला इसके गलक में अटक गया। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो मुश्किल खुद को बोलने पर मजबूर कर रही थी। तो लो, अब सारी टेंशन ख़त्म करने लगी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा रहम, तुम्हारी हमदर्दी। आबरू, इससे पहले वो कांच का टुकड़ा अपनी कलाई पर फेरती शाह ने लम्हे के 1000वें हिस्से में आगे बढ़ते इसका हाथ खींच लिया। शट अप, पागल हो क्या? तुम जानती भी हो क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, नहीं रहना मुझे इस जहन्नम में, मर जाने दो मुझे। शट अप आबरू, अब अगर तुम्हारी आवाज़ ज़रा सी भी आई तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा। इसे किसी भी तरह काबू में न आते देखकर शाह का हाथ उठ चुका था। तो मार दो मुझे, मारो, मार दो। वो चीखती हुई ढाल से इसके बाजू में झूल गई। आबरू, आंखें खोलो प्लीज़। शाह से बेड पर लटाकर इसके गाल थपथपाता मुंह पर पानी की छींटे मारने लगा। इसने कसलमंदी से आंखें खोली और अगले पल बंद हो गई। शाह ने उस पर ब्लैंकेट ड्रूस किया, उसका हाथ थामे दूसरे हाथ से इसके बालों में उंगलियां चलाते इसे राहत पहुंचाने लगा। वो इसके चेहरे पर निगाह टिकाए आत्मा पहले वाली आबरू को ढूंढने लगा, जो बिला खौफा खतर इससे उलझ पड़ी थी, जिसने सिकंदर शाह को ज़िंदगी में पहली बार खामोश करवाए थे। इस सिकंदर शाह को जिसके कहर से दुनिया डरती थी। और आज मैंने इस लड़की को क्या बना दिया कि वो मौत को गले लगाना चाहती है? क्यों किया मेरे खुदा मैंने ऐसा? क्यों इसे ना करता गुनाहों की सज़ा देता रहा? मेरा मुजरिम तो ज़मान अहमद था, फिर क्यों? आबरू, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह सरज़द हो गया। तुम मुझसे नफ़रत करती हो ना, मैं तुम्हारी नफ़रत सहने के लिए तैयार हूँ। तुम जो सज़ा दोगे मुझे मंजूर है, लेकिन मुझसे दूर जाने का सोचना भी मत, मैं मर जाऊँगा। वो इसका सर अपने सीने पर टिकाए वो सर इसके सीने पर टिकाए अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था। इसके खामोश आंसू बह रहे थे। जा मर जा जाके, थोड़ा सानू भी सुकून आवे, दुनिया के विचों गंद घट होवे थोड़ा जिन्ना। वो न जाने कितनी देर इसी पोजीशन में बैठा कनूदगी में गुम आबरू को अपनी आंखों के जरिए दिल में उतारा था। दरवाजे पर दस्तक ने इसके इर्तिकास को तोड़ा। इसने आंसू साफ कर दरवाज़ा खोल दिया। साहब, वो औरत आज फिर आई है, सुल्तान ने इसकी खून बरसाती निगाहों से नज़र चुराते हुए बताया। तो शाह के चेहरे और गर्दन की रगें तन गई। इसने जब्त की इंतहाओं को छूते हुए आंखें जोर से मीची और गहरा सांस खींचा। गेस्ट रूम में लेके जाओ। शाह ने कहते डोर इसके मुंह पर जोर से बंद किया तो सुल्तान डर के उछला। 1 2 3। इन्हें हाई स्कूल से कमरे में बैठे 3 घंटे से ऊपर वक्त हो चुका था। इनकी आंखें बार बार आने वाले की राह तकती वापस मायूस लौट आती। इनके दिल में दर्द की लहर उठी थी। आज कितने दिन बाद वो इन्हें अंदर आने की इजाज़त दी थी, वरना इससे पहले तो हर रोज़ इन्हें धुतकार के निकाल दिया जाता। वो अपना सारा वक्त गेट के बाहर खड़ी अंदर उम्मीद भरी निगाहों से देखती रहती। शायद ज़ाबिर शाह भी अपने बाप की तरह ज़िद्दी, ज़ालिम और बेरहम था, लेकिन आज इसे रहम आ ही गया था। इससे पहले इनकी मायूसी नाउमीदी में बदलती कदमों की चाप पर इनके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। न जाने आज इनके साथ क्या सलूक रमा रखा जाएगा। सिकंदर शाह अंदर आए तो एक लम्हे के लिए सफ़ेद चादर के हाले में चमकते पुरनूर चेहरे पर निगाह ठहर गई। इन आंखों में क्या कुछ नहीं था, मायूसी, बेबसी, बहुत कुछ खो देने का दुख और कहीं कुछ मिलने की चाह। शाह,
वो इसे देखते दीवाना वारिस की तरफ पड़ी। क्या मसला आपके साथ? क्यों मेरे गार्ड्स का जीना हराम कर रखा है? शाहीन का आगे बढ़ना नज़रअंदाज करता सोफे पर जा बैठा। इसका लहजा ख़तरनाक हद तक सर्द था। ज़ैनब बी की आंखों से आंसू टूट कर गिरे। ज़ाबियार, सिकंदर शाह नाम है मेरा। तुम दूसरों के लिए सिकंदर शाह हो सकते हो, लेकिन मेरे ज़ाबियार शाही हो। मैं माँ हूँ, मेरी माँ मर गई है। आप यकीनन किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। शाह बेदर्दी से बोलता इनके दिल का खून करके। तुम्हारे नज़दीक तुम्हारी माँ मर सकती है, लेकिन मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने ज़िंदा सलामत खड़ा है। इनकी आवाज़ का दर्द शाह के दिल में हलचल मचाने लगा। आप जा सकती हैं। इससे पहले वो किसी कमज़ोर लम्हे की जद में आता, वो इस वजूद को जल्द से जल्द अपनी आंखों के सामने से ओझल करना चाहता था। नहीं ज़ाबिर, तो तुम्हें खुदा का वास्ता ये जुल्म ना करो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। तो तुम मुझसे लड़ो, नाराज़ हो, जो कहना कह लो, लेकिन मुझे जाने का मत बोलो। मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने आई हूँ, तो तुम एक बार मुझे सुन लो, फिर चाहे धक्के मार के निकाल देना। वो इसकी नाम में खड़ी हाथ जोड़े बहती आंखों से बोली। अच्छा, बहुत जल्दी ख्याल आ गया ज़ाबियार शाह का। वो तो 4 साल की उम्र में मर गया। आपने तो इसके मरने का सुनकर जश्न मनाए होंगे, तो फिर ये मातम क्यों? शाह की सदमोहरी ज़ैनब बी के दिल का खून कर गई। अल्लाह ना करे मेरे शाह को कभी कुछ हो। कोई माँ इतनी जालिम नहीं होती कि अपनी कोख से पैदा होने वाली औलाद की मौत की बद्दुआएं मांगे। मैंने हर लम्हा तुम्हें अपनी दुआओं के हसार में रखा, अपनी हर सांस के साथ तुम्हें याद किया। तुम मेरे वजूद का हिस्सा, मेरी रूह का हिस्सा और मेरे जीने की वाहद वजह। झूठ, सब झूठ, बकवास है ये सब। कुछ नहीं लगता मैं आपका, कोई रिश्ता नहीं है मेरा आपसे। अपने इन हाथों से मारती थी मुझे। वो इनके दोनों हाथ बेदर्दी से पकड़े गुर्राया। मुझे खुद से दूर रखा, माँ की ममता से मरहूम रखा मुझे। मेरी आंखों के सामने गैर मर्दों कलाइयों पर इसके हाथों की सख्त ग्रिफ से ज़ैनब बी को रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ती महसूस हुई। शाह के अधूरे जुमले पर दोनों की आंखों से आंसू टपका, जिसे शाह बेदर्दी से रगड़ता रुख फेर गया। बस यही एक अधूरा जुमला ज़ैनबी को खुद की नज़रों में गिरा जाता था। वो बेकसूर होते हुए भी गुनाह के मुर्तकिब ठहराई जाती थी। एक बार भी आपने इस बच्चे के बारे में नहीं सोचा, जिसे मार कर ज़बरदस्ती कमरे में बंद कर देती थी, जो रात को अकेला अंधेरे के खौफ से सो नहीं पाता था, जिसके कानों में गैर मर्दों के ऊंचे कहके और सरगोशियाँ किसी छूल फूंकने का असर करती थी? क्यों किया था ऐसा? वो कमरे की हर चीज़ को तहस नहस करता चीख रहा था। इस पर जुनून सवार था। इसने शीशे की मेज़ को दोनों हाथों से उलट दिया, जिसके टुकड़े ज़ैनबी के पैरों को जख्मी करते इन्हें सख्त तकलीफ से दो चार करके। इनका दिल कांप के आंखों से आंसुओं का सैल रवां था। सिर्फ एक बार मुझे अपने सीने से लगाए ममता का एहसास बख्शा था? नहीं, क्योंकि मैं आपके गुनाहों का नतीजा था। चटाख। इससे पहले शाह मजीद इनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाता इनकी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। इनका हाथ शाह के मुंह पर उंगलियों के निशान छोड़ के, कुछ जुतियाँ भी 2-4 मार दे। हाँ, मारती थी मैं तुम्हें, खुद से दूर कमरे में बंद रखती थी, होती थी मैं गैर मर्दों के साथ, गुजारती थी अपना वक्त इनके साथ। जानते हो क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए। इसकी ज़िंदगी की कीमत अदा करती थी, इसकी सांसों के लिए खुद को सूली पर लटकाती थी, खुद को मार कर इसकी जान बचाती थी। हाँ, मारती थी तुम्हें, क्योंकि किसी गलीस मर्द का साया भी तुम पर नहीं पड़ने देना चाहती थी। तुम्हें खुद से दूर रखती थी, क्योंकि मैं खुद को तुम्हारी नज़रों में गिरा हुआ नहीं देख सकती थी। बहुत जल्द तुम्हें वहाँ से निकाल के कहीं दूर ले जाना चाहती थी, जहाँ सिर्फ मैं और मेरा बेटा होते। तुम्हें सबसे अलग मुनफरिद मर्द बनाना चाहती थी, लेकिन मेरी सारी कोशिशें नाकाम बना दी गई। तुम्हारी ज़िंदगी के लिए सब वादे के लिए गए, सारे वादे तोड़ दिए गए, और एक दिन बहुत खामोशी से मेरी रूह को मेरे जिस्म से जुदा कर दिए गए। बगैर किसी पशेमानी, किसी खौफ के मेरे जीने की वाहद वजह मुझसे छीन ली गई। वो क़यामत आज भी मेरे अंदर बरपा है। मैं कितना रोई थी, तड़पी, गिड़गिड़ाई थी, लेकिन आंसुओं का गोला इनके हलक में अटका बोलना दुश्वार कर रहा था। ये इंकशाफ शाह के अंदर क़यामत बर्पा कर रहे थे। इसका पूरा वजूद ज़लज़लों की ज़द में था। ज़ुबान गूंग और दिमाग की रगें फटने को थी। तुम कोई गुनाह नहीं हो, मेरी रूह का हिस्सा, मेरी कोख से जन्म लिया तुमने, जायज़ औलाद हो मेरी। अपने अल्लाह को हाजिर नाज़िर रख कर मैं निकाह किया था मैंने। मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने सिर्फ एक ही शख्स को अपना आप सौंपा था, जिसकी मैं जायज़ मलकियत थी। नहीं जानती थी कि मेरा पेशा मेरी पाक दामनी पर सबकत ले जाएगा, और एक तवाइफ का लक़ब मेरी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। नहीं थी मैं बदकार, कभी नहीं रही। रुख मोड़कर खड़े शाह को दिलो दिमाग में टीसे उठती महसूस हुई। वजूद आंधियों की नज़र होने लगा। मेरे किरदार में ज़रा सा खोट भी होता तो कभी भी कोठे को छोड़कर ज़माने की ठोकरें सहती अपने बेटे को तलाश में पागल ना हो रही होती। दलदल में डूबी जिल्लत भरी ज़िंदगी से इज्जत वाली मौत का इंतखाब ना करती। लोगों की चुपती नज़रों, बेबाक जुमलों के खंजर से अपने दिल को लहूलुहान ना करती। वो टूटे हुए टुकड़ों के पास बैठी नोकदार टुकड़े से अपनी हथेली पर ज़रबे लगाती ज़ख्मी दिल के साथ बोलती खामोश हो चुकी थी। ये क्या करिए आप? शाह की नज़र इनकी हथेलियों से रस्ते खून पर पड़ी तो दौड़ता हुआ इनके पास है। कारपेट पर इनके सामने बैठा टुकड़ा छीन कर दूर फेंका। कोई यकीन नहीं करता मेरा, किसी ने नहीं किया। मैं सोचती थी मेरा बेटा मेरे साथ है, मेरे दुख बांटे कर ले, लेकिन वो निगाहें अपनी हथेलियों पर टिकाए शिकस्ता लहजे में बोल रही थी। आंसू गालों से फिसलते खून आलूद हाथों पर गिरे थे। इनके चेहरे की वीरानगी, आंखों का सकून, शाह का दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने बेटे की नज़रों में इतनी गिर चुकी हूँ, मेरे साय से भी नफरत करने लगा। शाह को लगा इसका दिल फट जाएगा, वह इनका दुख सह नहीं पाएगा।
نہیں، اس نے بہتی آنکھوں کے ساتھ انہیں اپنے چوڑے سینے میں بھیج لیا۔ ان کی بکھری ساتھ کے ٹکڑوں کو سمیٹ لیا۔ زینبی کو لگا ان کی ساری تشنگی ختم ہو گئی، سارے دکھ کسی کونے میں منہ چھپا کے انہوں نے شاہ کی شرٹ کو پیچھے سے مٹھیوں میں سختی سے جکڑ لیا، گویا گرفت ڈھیلی پڑی تو وہ پھر سے اپنے شاہ کو کھو دیں گے۔ نہیں، میں نے کبھی آپ سے نفرت نہیں کی، کبھی خود کو آپ کی یاد سے غافل نہیں کر پایا ماں۔ اپنی ہر سانس کے ساتھ آپ کی خوشبو کو اپنے اندر محسوس کیا۔ آپ کے بنا ایک رات بھی سکون کی نیند نہیں سو سکا۔ مجھے معاف کر دے ماں، میں آپ کا گناہ گار ہوں، بہت برا، آپ کو دکھ دیے، ہمیشہ تکلیف سے دوچار کیا، مجھے معاف کر دے ماں۔ میں نے سینے سے لگائے اپنی پیاس بجھا رہا تھا، اپنی محرومیاں بے تابیاں ان کی گوش گزار کرتا اپنے اور ان کے دل پر بوجھ ختم کر رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو باہوں میں بھیجے روتے ہوئے اپنا کرب بیان کر رہے تھے۔ نہ جانے کتنے لمحے ایک دوسرے کی خوشبو کو اپنے اندر جذب کرتے رہے۔ شاہ نے بہت آہستگی سے انہیں خود سے الگ کیا، ان کی بہتی آنکھوں کو صاف کیا اور دونوں زخمی ہاتھوں تھا ہمیں اپنے لبوں سے لگا لیا۔ کیوں خود سے دور کیا تھا مجھے؟ میں نے آپ کو بہت پکارا تھا لیکن آپ میری ایک پکار پر بھی نہیں آئی۔ میں بہت رویا، آپ نے اس کے پاؤں پکڑے تھے لیکن وہ، اس نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ ماں، وہ رات، ویران جنگل کا منظر اور خونخوار جانوروں کی خوفناک آوازیں ابھی تک میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ لیکن اب نہیں، اب آپ کبھی نہیں روئیں گی۔ آپ کے ہر آنسو، ہر اذیت کا حساب لوں گا، اس کی سانسوں کو روک دوں گا جس نے ہمیں جدا کیا۔ وہ ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے بولتا جا رہا تھا۔ میں اس انسان کو کیفر کردار تک پہنچا کے رہوں گا جس نے آپ کی ہستی، آپ کے غرور اور آپ کی محبت کو اپنے پیروں تلے روندا ہے۔ اس کا نام و نشان اس صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا جس نے ہمیں بے نام ٹھہرایا۔ یہ آپ سے، آپ کے بیٹے، آپ کے زاویار کا وعدہ ہے۔ شاہ کے الفاظ زینب بی کے دل میں ٹھنڈی پھوار کی طرح برس رہے تھے۔ وہ ان کی ہستی کو موت پر کر رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر انہیں اپنی مضبوط باہوں کے گھیرے میں کسی متاع کی طرح سمیٹے رو رہا تھا۔ سکندر شاہ دو ہستیوں کے لیے رویا تھا، آب و زمان اور زینب بھی۔ اتنے بڑے انکشافات پر باہر کھڑا وجود زلزلوں کی لپیٹ میں تھا۔ نگاہ میں سارے منظر چاندنی شب کے حسین لمحات کے مانند سمائے تھے کہ میرا جسم چنبیلی کی خوشبو میں بسا تھا اور میری روح میں ٹھنڈک فضا کی اتری تھی۔ اتنا مکمل تھا میں جیسے چاند تک دلکش چکوروں کی رسائی ہوگی ہو۔ تم بھی اتنی ہی مکمل تھی۔ حقیقت ہے بقا حاصل نہیں سب کو۔ مسیحائی بہت ہی خام تھی، تمہارے ٹوٹنے کے سارے منظر وہ نگاہوں میں ابھی تک چبھتے ہیں۔ ہونے نہ ہونے کی وحشت جو تمہاری روح تن سے کھینچتی ہے مجھ پر طاری ہے۔ وہ سانسیں جن سے جیون کا کوئی ایک بھی تصور نہ ابھرتا تھا، وہ دھڑکن بھی جسے محسوس نہ کر نہ سکی تم، وہ تمہاری دھڑکنیں، سانسیں، وہ اب مجھ میں سمائی ہیں۔ میری بھی ذات اب تم سے معلق ہے فضا میں۔ جسم دھرتی پر تو ہے پر روح اب تک آسمانوں میں، تمہیں ہی کھوجتی ہے، زندہ ہوں پر زندگی گم ہے۔ مسیحا، لوٹ آؤ خود میں کہ تم سے ستارے جگمگاتے تھے۔ تمہارا ساز ہی تھا جس سے جیون جھوم اٹھتا تھا۔ تمہارا مرض شاید لادوا ہے پر مجھے تم سے شفا لازم۔ مسیحا تم مکمل ہو، مسیحا میں ادھورا ہوں۔ مسیحا میں، اس کا نام و نشان اس صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا جس نے اوہو آئی تھے اور رپیٹ ہو گئی ہے۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آنے لگا۔ ہر آہٹ پر اپنے بیٹے کے چھوٹے چھوٹے قدموں کی آواز سنائی دیتی۔ تمہاری چیخوں کی گونج نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ مجھے صرف اور صرف اپنا بیٹا چاہیے تھا، کہیں سے بھی۔ لیکن میری فریاد کوئی نہیں سنتا، سب ظالم بن گئے۔ مجھے رقص کرنے کے لیے مجبور کیا جانے لگا، قید کر کے ہر طرح کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ میری ماں، نہیں ماں ایسی نہیں ہوتی۔ ستارہ بیگم تمہارے لیے میری بے بسی، میری تڑپ، عزت نفس اور میرے کردار کو میری اکڑ کہتی تھی جسے پاش پاش کرنا اس کا جنون بن چکا تھا۔ میرے انکار اسے کروڑوں کا نقصان پہنچانے لگا۔ وہ یہ سب کیسے برداشت کرتی؟ میری زندگی کو میرے لیے سزا بنا دیا گیا۔ ستارہ بیگم ہر کم ظرف مرد کو میرے پاس بھیجنے لگی جو کسے بھوکے شیر کی طرح مجھ پر جھپٹنے کی کوشش کرتا، لیکن ہر بار میری عزت میرے اللہ نے بچائی جس کی میں بہت گناہ گار بنتی ہوں۔ میرا اللہ گواہ ہے، آج تک کوئی مرد، کوئی نامحرم میری ایک انگلی کو تک چھو نہیں پایا، لیکن وہ غلیظ نظریں میرے جسم سے پار میری روح تک کو گھائل کرتی تھی۔ مجھ پر جنون سوار تھا صرف اور صرف اپنے بیٹے کے پاس پہنچنے کا، اسے اپنے سینے سے لگانے کا۔ میں اسے اپنی آغوش میں قید کر کے اس دنیا سے چھپا دینا چاہتی تھی۔ ببلی کے سوا میرا کوئی دوست، ہمدرد، کوئی غمخوار نہیں تھا۔ اور ایک رات میں جب محفل عروج پر تھی اور مستی میں گم گھنگروں کی چھنکار میں تھر تھر آتے بہت سے پیروں کو نشے میں دھت ہوس کے پجارے اپنی بھوک کا شکار بنا رہے تھے، تو ایسے میں صرف ببلی تھی جس کا دھیان تہہ خانے میں قید بھوک اور پیاس نے نڈھال وجود کی طرف تھا۔ اور اسی رات میں اور ببلی اس جہنم سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ہم دونوں اس دلدل سے کوسوں دور ایک چھوٹی سی بستی میں آ گئی جہاں ایک بزرگ خاتون کو یقیناً اللہ نے ہمارے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا تھا، انہوں نے ہمیں پناہ دی۔ ہم روز تمہاری تلاش میں صبح کے اجالے کے ساتھ گھر سے نکلتی، سورج غروب ہو جاتا، اندھیرے پر پھیلانے لگتا اور اسی طرح ایک اور دن مایوسی کی نظر ہو جاتا۔ ہم نے آس پاس ہر علاقہ، جگہ، ہسپتال، دارالنعمان، جنگل تک چھانے مارے، لیکن تم نہیں ملے۔ ببلی کہتی تھی خدا نہ خواستہ انہوں نے تمہیں، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا، میں اپنے بیٹے سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ میری مایوسی نا امیدی میں بدلنے لگی، مٹی کا ڈھیر ہونے لگی۔ ایسے میں صرف ببلی اور شادہ ماں بزرگ خاتونی تھی جنہوں نے میرے وجود، میری امید کو ڈگمگانے نہیں دیا اور اللہ کی ذات پر میرا ایمان پختہ کرتی تھی۔ میرا نام زینب بھی انہی کا دیا ہوا تھا۔
ان کی دینی تعلیم اور شفقت مجھے رفتہ رفتہ اللہ کے قریب کرنے لگی۔ ہر سانس کے ساتھ تمہارے ملنے کی دعائیں مانگی، ہمیشہ کسی معجزے کے ہو جانے کی دعا کرتی تھی، لیکن معجزے شاید اتنی جلدی وقوع پذیر نہیں ہوتے۔ میرے اللہ سے دل لگی نے کبھی مجھے مایوس نہیں ہونے دیا۔ وقت تھوڑا مزید آگے سرکا تو شاہدہ ماں کی کوشش سے ببلی کے لیے ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ عام سی شکل و صورت کا سلمان ایک بہت اچھا، شریف اور نیک سیرت انسان تھا۔ ہم ببلی کے لیے بہت خوش تھی۔ چند ماہ بعد ببلی پیادے سدھار کے شاہدہ ماں میری سہیلی، میری ماں، میری غمخوار اور میری مسیحا بن گئی۔ اور اسی طرح قیامت سے بھی خوفناک دن چپکے سے ماں، میرا آخری سہارا، بھی مجھ سے اس ظالم دنیا میں اکیلا چھوڑ کے چلی گئی۔ میں ماں کے بچھڑنے سے بہت روئی تھی۔ ببلی بھی کچھ دن گزار کے چلی گئی، لیکن اس بستی کے عظیم مخلص لوگوں نے مجھے کبھی اکیلا نہیں ہونے دیا۔ ہر گھڑی میں میرے ساتھ کھڑے رہے۔ زینب بھی بیڈ پر بیٹھی اپنی زندگی کے رودات شاہ کے گزار کر رہی تھی، جبکہ شاہ کارپٹ پر بیٹھا سر ماں کی گود میں رکھے اس دکھ بھری داستان کو خاموشی سے سنتا آنسو بہا رہا تھا۔ زینب بھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی، ان کے بہتے اشک شاہ کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ خاموشی چاہیے تو شاہ نے تڑپ کر ماں کی طرف دیکھا اور انہیں اپنی مضبوط باہوں میں بھیج لیا۔ ماں، آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دے پلیز۔ وہ دیوانہ وار ان کے چہرے کو چومتا بار بار معافی طلب کر رہا تھا۔ نہیں میری جان، میں اپنے بیٹے سے ناراض نہیں ہوں، کبھی بھی نہیں رہی، بلکہ میں تو تمہاری مجرم ہوں، مجھے معاف۔ اس سے پہلے ان کی بات مکمل ہوتی شاہ نے ان کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں ماں، آپ کیوں مجھے مزید گناہ کار کر رہی ہیں؟ مجرم میں ہوں، گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ماں۔ میں بہت برا ہوں، ہمیشہ برائی کیا، بہت ظالم ہوں، ہمیشہ ستم اٹھائے، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اب میں کبھی آپ کو خود سے جدا نہیں ہونے دوں گا، کبھی نہیں۔ کبھی کبھی چند لمحے لگتے ہیں مان ٹوٹنے میں، بھرم کا خون ہونے میں، کسی کی نظروں میں گرنے میں اور اپنی ذات کا غرور ٹوٹنے میں۔ خاموشی کی آڑ میں چھپے چند الفاظ ہی ہماری ذات کا بھرم رکھ رہے ہوتے ہیں، اور فقط چند لفظوں کی زبانی ہمیں خاموش کروا دیتی ہے۔ جب مان ٹوٹتا ہے تو انسان کے اندر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اس کا وجود ہر احساس سے عاری محض ایک بوجھ کی مانند لگتا ہے۔ ایسے ہی بوجھ آبرو کی اپنی ذات پر محسوس ہو رہا تھا۔ اندر بند کمرے میں بولے جانے والے الفاظ اس کی ہستی کو گنبد کی بری طرح زمین بوس کر رہے تھے۔ اسے اپنا آپ آندھیوں کی زد میں بکھرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگا وہ مزید چند ساعتیں وہاں موجود رہی تو اپنے حواس کھو بیٹھے گی۔ وہ بمشکل اپنے وجود کو گھسیٹنے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ آسمان پر بادلوں کی گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش شروع ہو چکی تھی۔ بابا، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں مجھے میری ہی نظروں میں قصوروار ٹھہرایا؟ میں کبھی بھی سر اٹھا کے جی نہیں سکوں گی۔ میں کتنے غرور کے ساتھ سکندر شاہ کا مقابلہ کرتی تھی۔ بابا، آپ کی بیٹی ہار تو پہلے ہی چکی تھی، اب ٹوٹ بھی گئی ہے۔ بابا، کچھ تو میری ذات پر بھرم رہنے دیا ہوتا۔ کوئی نہیں رہا میرا، کوئی بھی نہیں۔ اللہ جی مجھے موت دے دے، میں یہ سب نہیں سہ سکتی۔ بہت کم ہمت ہوں میں، اتنے بڑے بوجھ کے ساتھ جی نہیں پاؤں گی۔ وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے آنسو بارش کے قطروں میں شامل ہو کر انہیں بے مول کر رہے تھے۔ آسمان میں اس کی تناز دل کھول کر اشک بہا رہا تھا۔ میری بیٹی یہ کیسی ہے اب؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ زینب بی نے آبرو سے متعلق دریافت کیا تو شاہ نے فوراً نگاہ چرائی۔ شاہ؟ زینب بی نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں اس کا رخ اپنی طرف کیا تو شاہ کی آنکھوں میں موتی واضح چمک رہے تھے۔ شاہ، میری بہو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اپنا سوال دہرایا۔ ماما، میں اس کا مجرم ہوں، میں نے بہت زیادتی کی آبرو کے ساتھ، ہمیشہ میرے ظلم کا شکار بنی ہے۔ ماما، میں بہت برا ہوں، بہت گناہ گار ہوں، اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا؟ میں آبرو کا مجرم ہوں ماما۔ وہ میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی، نفرت کرتی ہے مجھ سے، دور جانا چاہتی ہے مجھ سے، لیکن ماما میں اسے خود سے الگ نہیں کر سکتا۔ مر جائے گا آپ کا شاہ، اللہ نہ کرے شاہ۔ خبردار جو آئندہ تم نے ایسی فضول بات مجھ سے نکالی تو بہت ماروں گی میں۔ ماما نے اس کے آنسوؤں سے تر چہرے پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے ڈپٹا تھا۔ اور جو خفا انہیں پیار اور محبت سے منایا جاتا ہے، اگر ستم ڈھائے ہیں تو مسیحائی بھی تو میرا بیٹا ہی کرے گا۔ ماما، وہ مجھے چھوڑ جانے کی بات کر رہی تھی۔ شاہ کا لہجہ پست تھا۔ تیرے وغیرہ بندہ کتیاں دے پا کے جاوے تو وہ تو صرف چھوڑ جان دی بات کر رہی سی، تو تم روک لینا، پیار سے، محبت، چاہت اور خلوص سے۔ آہو پہلے پیٹ پٹیا کر لو، پہلے پیٹ دے رہو دن رات، تو پھر بعد جو چاہت محبت خلوص نہ روک لو، لاکھ لعنت ہے۔ وہ نہیں مانے گی، میں جانتا ہوں اسے۔ ماما، وہ کیوں نہیں سمجھ رہی کہ میں اس سے کوئی پلے نہیں کر رہا، میں اسے ہر لمحہ اپنی آنکھوں نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے بہت… ایک آنسو اس کی آنکھ سے پھسلتا اس کی خوبصورت بیئرڈ کے بالوں میں گم ہو گیا۔ وہ اس معصوم بچے کی طرح لگ رہا تھا جو اپنا پسندیدہ کھلونا گم ہو جانے پر روتا ہے۔ کھلونا تو سمجھے ایسی انہوں محبت کرنے لگے ہو نا، چاہنے لگے ہو نا آبرو کو؟ ماما کے استفسار پر وہ نگاہ چلا کے گویا اقرار تھا۔ پتہ ہے شاہ، عورت محبت سے زیادہ کیا چیز چاہتی ہے؟ عزت۔ ایک عورت ہمیشہ عزت کی تمنائی ہوتی ہے، پھر چاہے تم اس کے دامن میں محبت کا کشکول نہ بھی ڈالو تو وہ کبھی تم سے شکوہ نہیں کرے گی۔ محبت کے بغیر عورت کا وجود قائم رہ سکتا ہے، لیکن عزت کے بغیر بہت جلد اس کا وجود بھربھری مٹی کی ڈھیر بن جاتا ہے۔ تم اس سے محبت تو کرنے لگے لیکن عزت کا رشتہ ابھی بھی نہ پیدا ہے۔ جڑا بندہ آپ بے غیرت ہوئے، جڑا عزت دے قابل نہ ہوئے تے انہوں کی پتہ کسی دی عزت کدّا کرنی۔ وہ خفا ہے، تم منا لو اسے، اس کے وجود کے بکھرے ٹکڑوں کو بہت محبت سے اپنے دامن میں سمیٹ لو، اس کی ذات کے ادھورے پن کو اپنی چاہت سے نکھار دو، مکمل کر دو اسے، اس کی ہر خفگی، ہر تشنگی کو اپنے مضبوط رشتے کی اپنائیت سے دور کرو، اسے بند کھول سے باہر کھلی فضا میں سانس لینا سکھاؤ۔ میں جانتی ہوں یہ سب تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں، اور مجھے یقین ہے میرا بیٹا بہت جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ میں ہمیشہ آپ دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھنا چاہتی ہوں، وعدہ کرو، مناؤ گے نا میری بیٹی کو؟
جی ماما انشاءاللہ، ماما آئی لو یو سو سو مچ، شانے نے باہوں میں بھرتے ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ آئی لو یو ٹو میری جان، زینب بھی نے اس کی پیشانی چوم لی۔ چلے میں تھوڑی دیر آرام کرتی ہوں اور آپ بھی ابھی سے اپنے مشن پر لگ جائیں۔ کافی دیر مزید باتوں کے بعد زینب بھی نے کہنے لگی تو شاہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ ارے بیٹا جان، بہو سلا مشن؟ ابھی نہیں، ابھی میں صرف آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے پر واضح تھکاوٹ تھی۔ اور ابھی کیوں نہیں؟ جو کام کرنا ہے اس میں دیر کیوں کرنی؟ چلو شاہ بچاؤ۔ ماما، شاہ بچارگی سے بولا۔ شاہ اوکے، آپ تھوڑی دیر سوچیں، پھر ڈنر ساتھ کریں گے۔ شاہ نے بیڈ پر لٹائی ان کے سر پر پیار کے کمفرٹر درست کرتا باہر آ گیا۔ زینب بھی پرسکون سی آنکھیں موند گئی۔ شاہ روم میں آئے تو آبرو اسے کہیں نہیں دکھی۔ آبرو کہاں ہو؟ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا باہر آ گیا۔ سلمہ، آبرو کہاں ہے؟ صاحب جی، بی بی جی روم میں سو رہی ہیں، سلمہ نے فوراً بتایا۔ واٹ، تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ وہ روم میں نہیں ہے۔ شاہ کی پیشانی پر سلوٹیں پڑی۔ اس کی بے چینی پڑنے لگی۔ وہ ایک سخت نگاہ سلمہ پر ڈالتا سارے روم چیک کرنے لگا، لیکن آبرو کہیں بھی نہیں تھی۔ میں نے کیا بکواس کی تھی کہ تم ایک سیکنڈ کے لیے بھی آبرو سے غفلت نہیں برتو گی؟ اگر اسے کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شاہ اس پر گرجتا باہر آ گیا، جبکہ سلمہ خوف سے کپکپاتے ہوئے آبرو کی خیریت کی دعائیں مانگنے لگی۔ آبرو کہاں ہو؟ اف، ایک تو یہ لڑکی کہاں چھپی بیٹھی ہے، اوپر سے آئے روز یہ بارشوں کا سلسلہ۔ شاہ آبرو کی تلاش میں مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ اسے ایک دم سے سخت کوفت ہونے لگی۔ اسے کبھی بھی بارش پسند نہیں رہی تھی، کجا کے بارش میں بھیگنا اس پر سخت جھنجھلاہٹ طاری ہونے لگی۔ آبرو، وہ ارد گرد نگاہ دوڑاتا اسے پکار رہا تھا۔ جب اس کی نظر سیڑھیوں کے پاس پڑے دوپٹے پر پڑی، اس نے آگے بڑھتے فوراً دوپٹہ اٹھا لیا، اپنے قدم اپنی منزل کی طرف بڑھا لیے۔ شاہ کو ٹیرس پر جلتی مدھم بلب کی روشنی میں آبرو کو تلاش کرنا مشکل نہیں لگا۔ وہ سامنے ریلنگ کے سامنے بیٹھی، دونوں ہاتھ پہلو میں گرے مکمل بارش میں بھیگی ہوئی تھی۔ شاید بارش کی تیزی نے اسے آنکھیں موندنے پر مجبور کیا۔ شاہ دیوانہ وارث کی طرف بڑھا۔ آبرو پاگل ہو کیا؟ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اٹھو یہاں سے، بہت تیز بارش ہے۔ شاہ نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے بے چینی سے کہا۔ بارش میں بھیگنا اس کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، لیکن آبرو ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ آبرو، شاہ نے اس کے یک ٹھنڈے چہرے کو ترہم امیز نگاہوں سے دیکھتے ایک بار پھر پکارا تو آبرو نے اپنی آنکھیں واقعی چند لمحے سے چہرے پر دیکھتی رہی اور پھر سے بند کر لی۔ آبرو پلیز اٹھو یہاں سے۔ شاہ نے اسے آنکھیں بند کرتے دیکھ سے بازو سے تھام کر اٹھانا چاہا تو آبرو نے بہت آہستگی سے اس کے ہاتھ خود سے دور کر دیے۔ شاہ کو بالکل بھی ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ آبرو پلیز رحم کرو مجھ پر، خود کو سزا دینے کا یہ کون سا طریقہ؟ تمہاری طبیعت پہلے ہی۔ اس سے پہلے شاہ مزید اپنی بیچارگی کا اظہار کرتا اسے اندر جانے کے لیے قائل کرتا آبرو کے لب ہلے۔ امی بتاتی ہیں جب میں پیدا ہوئی تھی بابا خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ان کے گھر پری جو آئی تھی وہ مجھے پری کہتے تھے۔ بابا کی جان بستی تھی مجھ میں، وہ میری ہر خواہش پوری کرنا اپنا اولین ترجیح سمجھتے تھے۔ امی سے اکثر ڈانٹ بھی پڑ جاتی، لیکن بابا کہتے تھے مجھے میری آبی حیا سے بھی زیادہ پیاری ہے نا عجیب بات؟ بیٹیاں تو ہم دونوں ہی تھی، لیکن بابا پیار سب سے زیادہ مجھ سے تھا۔ وقت گزرتا گیا، میں بڑی ہوتی گئی تو بابا کے پیار کے ساتھ ساتھ ان کو کوئی انجانا سا خوف بھی اپنے شکنجے میں جکڑنے لگا۔ بابا ہر پل مجھے اپنے آس پاس رکھتے ہیں۔ میں ذرا سا بھی آگے پیچھے ہوتی ہوں مجھے دیوانوں کی طرح آوازیں دینے لگتے، ڈھونڈنے لگتے۔ میں پہلے بہت خوش ہوتی تھی بابا کا پیار دیکھ کے، لیکن وہ صرف پیار نہیں تھا، کوئی خوف تھا، اور یہ خوف پیار کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتا گیا۔ آبرو پلیز یہاں روم میں جاتے ہیں، پھر تم مجھے سب بتانا پلیز۔ شاہ نے ایک بار پھر التجا کی، لیکن وہ اتنی کمزورہ سا واقعہ نہیں ہوئی تھی کہ اس بارش کو نہ سہ پاتی۔ اس نے تو بہت کچھ سہا تھا، اب تو اس کے وجود کو بھی پتھر کر لیا تھا۔ بابا رات کو کئی بار مجھے روم میں دیکھنے آتے، یوں جیسے وہ پوری رات میری حفاظت کرتے تھے۔ میں کالج سے یونیورسٹی گئی، لیکن پھر بھی بابا دن میں کئی بار فون کرتے، میں ٹھیک ہوں، کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ غرض بابا مجھے اس دنیا سے چھپا کر رکھنا چاہتے تھے۔ میں نے ہمیشہ بابا کو مسلح پر روتے دیکھا۔ مجھے یہ پیار کا انوکھاپن بہت عجیب لگتا، اور اس کے چند لمحے کی خاموشی میں شاہ نے اس کے چہرے پر بارش کے قطروں کے ساتھ ساتھ آنسوں کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن اس کی کاوش ناکام ٹھہری۔ وہ اس پیاری لڑکی کے بالکل سامنے براجمانی سے دیوانہ وار دیکھ رہا تھا، جسے بارش کے سخت تھپیڑوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس نے شاہ کے ہاتھوں میں مقید اپنے ہاتھوں کو چھڑانے کی صحیح نہیں کی، اور ایک دن میں بابا سے بہت لڑی۔ میں ان کا خوف نہیں دیکھ سکتی تھی، ان کا درد بانٹنا چاہتی تھی، لیکن بابا نے مجھے تھپڑ مار کر خاموش کر دوا دیا۔ بابا نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا، نہ صرف مجھے ڈانٹا بلکہ میرے ناراض ہونے پر مجھے منایا بھی نہیں۔ میں بہت روئی تھی، بابا سے دور نہیں رہ سکتی تھی، لیکن ان کی ناراضگی برداشت سے باہر تھی۔ میں نے بابا سے معافی مانگ لی، انہوں نے مجھے گلے لگا لیا، لیکن بابا کے خدشات میرے دل میں اپنی جڑیں مضبوط کرتے گئے۔ ان کا خوف میرا خوف بننے لگا۔ مجھے بابا کی آنکھوں میں کچھ کھو دینے کا خوف دکھتا تھا، وہ مجھے اس دنیا سے چھپا دینا چاہتے تھے۔ اس کی پست آواز شاہ بہت مشکل سے سن پا رہا تھا، اور پھر ایک دن بابا کے سب خدشات درست ثابت ہو گئے۔ وہ جو اپنی بیٹی کو دنیا سے نہیں، جس شخص سے چھپا کر رکھنا چاہتے تھے، وہ ان کے آبی کو ان سے چھین کر لے آئے۔ اس نے پانی سے لبالب آنکھوں سے شاہ کی طرف دیکھا۔ شاہ نے بولنا چاہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی، جیسے اس کے لیے شاہ کے بولنے کا کوئی جواز باقی نہ رہا۔ ان کی آبی کو ان گناہوں کی سزا ملتی رہی جو کبھی اس سے سرزد ہوئے ہی نہیں تھے۔ وہ بہت آسانی سے بابا کی آبی سے کھیلتا رہا، اس کے احساسات کو رونتا، اس کے وجود کی دھجیاں اڑاتا رہا، اور بالآخر ان کی مضبوط نڈر آبی کا غرور پاش پاش کر کے اس کو مکمل توڑ دیا۔ گلے میں اٹکا آنسوؤں کا گولا اسے بولنے میں مشکل پیش کر رہا تھا۔
आबरू, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे। शाइस का चेहरा दोनों हाथों में लिए इसकी आंखों में झांकते शिकस्ता लहजे में बोला। तो अबरू एक बार फिर इसकी बात काट की। दोनों ही हर चीज़ से बेपरवाह बारिश में भीग रहे थे। अगर वो एक बार भी मुझे मेरा जुर्म बता देता, मेरे बाबा से वो गुनाह का जिक्र करता, तो मैं इसे बताती कि मेरे बाबा ने पूरी ज़िंदगी अपने हिस्से की सज़ा काटी है, हर लम्हा सूली पर लटक के गुजारा। लेकिन नहीं, इसने सिर्फ अपना इंतकाम पूरा किया और बस। और अब इंतकाम पूरा हुआ, मेरे बाबा की सज़ा मैंने काट ली, अब सब ख़त्म। वो एकदम से इसके हाथ छटकती दृष्ट लहजे में बोली। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहरूंगी, हो गया बदला पूरा, ले लिया तुमने अपने हिस्से का इंतकाम, अब और नहीं। वो खड़ी हुई तो इसके कदम लड़खड़ाए। शाह ने आगे बढ़कर इसे थामना चाहा, लेकिन बहुत बेदर्दी से इसके हाथ टके। अबरू चलो अंदर, बहुत होगी बेवकूफ़ी, शाह ने प्यार से पिचकारा। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे सिर्फ अपने घर जाना, अम्मी बाबा के पास। तुम पागल हो गया? देखो बारिश में। हाँ हाँ हाँ, हूँ मैं पागल, और मुझे पागलपन की इंतहा तक तुमने पहुँचाया सिकंदर शाह। चलो अंदर, शाह ने इसे बाजू से थामना चाहा। कहा ना मुझे सिर्फ अपने बाबा के पास जाना, तुम मुझे अभी इसी वक्त तलाक। चटाख, शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये बकवास करने की? आइंदा सी बेहुदा बात मुंह से निकाली भी तो मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा। शायद इसके कंधों पर जोर डाले इसकी आंखों में देखते गुर्रा है। आबरू की इस बात पर इसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। सारी नरमी हमदर्दी किसी कोने में मुँह छुपा गई। थप्पड़ की शिद्दत से आबरू को अपना दिमाग हिलता हुआ महसूस हुआ। बोलूँगी ऐसा, नहीं रहना मुझे इस जहन्नम में। तुम्हें तुम्हारी माँ मिल चुकी है और तुमने मुझे जितना बर्बाद करना था कर चुके, अब जान छोड़ दो मेरी। वो इसकी मजबूत गिरफ्त को तोड़ती, इससे दूर होती, ऊंची आवाज़ में चिल्लाई थी। बारिश दिल ज़ोर से गरजे थे, बारिश की शिद्दत में तेज़ी आके, लेकिन वो दोनों बेपरवाह बने एक दूसरे से मुकाबले पर उतर आए थे। शाह आगे बढ़ता एक बार फिर इसे शिकंजे में जकड़ता अपने पास कर चुका था। क्या कहा? मुझसे दूर? सोचना भी मत कि तुम कभी इस पैलेस से, मेरी ज़िंदगी से कहीं दूर जा सकती हो। यहाँ से जाने के ख्वाब देखना छोड़ दो। मैं तुम्हें पैरों में अपने मजबूत रिश्ते की बेड़ियाँ डाल चुका हूँ मिसेज़ आबरू सिकंदर शाह। तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरी हो। अब तुम चाहे इसे मेरी ज़िद, जुनून, खुद गर्जी या मफाद परस्ती जो भी समझो, मुझे कोई परवाह नहीं। शाह की आंखों से शरारे निकल रहे थे। बारिश के कतरे इसके बालों और चेहरे से फिसलते आबरू के चेहरे पर आ रहे थे। वो होंगमनी इसकी तरफ देख रही थी। इसके दिमाग में एक ही जुमला गर्दिश कर रहा था, मजबूत रिश्ते की बेड़ियाँ डाल दी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं यहाँ नहीं रह सकती। कैसी बेड़ियाँ? इसकी आंखों में पंपता खौफ देखकर शाह ने फ़ौरन खुद पर कंट्रोल किया। तुम चाहकर भी यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। मिलाकर शाह ने हकीकत को इस पर अश्कार कर दिया। माँ? बच्चा? मैं माँ? नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो तुम झूठ बोल रहे हो। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। हाँ, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ये सब बकवास है, झूठ है सब। इसने मुसलसल नफ़ी में सर हिला दे खुद को छुड़वाना चाहा, लेकिन शाह की मजबूत गिरफ्त से वो हिलने तक से कासिर थी। शाह ने ठंड की वजह इसकी नीली पड़ती रंगत और कपकपाते वजूद को देखते फ़ौरन इसे गोद में उठाकर अपनी कदम दूसरी मंजिल पर बने कमरे की तरफ बढ़ा लिए। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? मैं कह रही हूँ नीचे उतारो, मुझे कहीं नहीं जाना। ये इसे सब झूठ है। आबरू मुसलसल इसके सीने पर मुक्कों की बरसात करती खुद को छुड़ाने की सही कर रही थी। शाह ने बहुत एहतियात से इसे बेड पर लटाया। मैं जा रही हूँ। आबरू ने कहराना निगाह इस पर डालते बेड से उठना चाहा तो शाह ने इसे बेड पर पटकते इसकी मज़ाहमत को नाकाम बना दिया। अब तुम यहाँ से 1 इंच बराबर भी रही तो इंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो इसके साथ बेड पर बैठते सर्द लहजे में बोला तो आबरू ने खौफ से छुड़छुड़ी ली। शाह इसके दुपट्टे से बेनियाज गीले लिबास पर निगाह डालते मुस्कुराया तो आबरू को फ़ौरन अपनी पोजीशन का ख्याल है। इसने बेसाख्ता आगे बढ़ते ब्लैंकेट खींच कर खुद को छुपाया। शाह इसकी हरकत पर खुलकर हंसा, वॉशरूम से टावल लाकर इसकी तरफ बढ़ा दिया। ओह, कम्बल भी गिल्ला तो बिस्तर भी गिल्ला। ये लो, बाल ट्राई करो, शाबाश, वरना बीमार पड़ जाओगी। और मैं सलमा को भेज रहा हूँ, तुम्हें चेंज करवा देगी, बगैर किसी लड़ाई शोट के चेंज कर लेना। बस होते दिगर इस रात की तरह मुझे खुद तरद्दुद करना पड़ेगा। शाह ने से टावल देते वार्न किया तो अबरू को सीधी निगाह इस पर डालती दांत पीसती रह गई। शायद चंद सेकंड इसके भड़कने का मुंतज़िर है, लेकिन अपना चेहरा दूसरी जानिब फेर चुकी थी जबकि शाह बाहर निकल गया। कमीना इंसान। आबरू गुस्से से खोलती, इसे गालियों से नवाजती, बेबसी के मारे रोती। चंद मिनट बाद ही सलमा खुश्क लिबास और गर्म दूध के गिलास के साथ हाजिर थे। इसने सलमा पर निगाह डाले बगैर इसे ड्रेस तकरीबन छीना और वॉशरूम में घुस गई। गर्म पानी से अच्छा सा शावर लेने के बाद रूम में आ गई। सलमा हनूज इसी पोजीशन में खड़ी थी। तुम मेरे सर पर क्यों सवार हो? जाओ यहाँ से। बीबी जी, ये दूध। सलमा ने हाथ में पकड़े ग्लास की तरफ इशारा किया तो आबरू ने फ़ौरन ग्लास लेते एक ही सांस में ख़त्म करके इसके हाथ पर पटक दिया। अब खुश, गुम करो अपनी शक्ल, और ख़बरदार इसके बाद रूम में भी आई तो। इसके धारने पर सलमा डर गई। बीबी जी, मुझसे कोई कोताही होगी जो आप मुझसे यूँ नाराज़ हैं? सलमा ने डरते डरते पूछा। नहीं, मैं क्यों किसी से नाराज़ होने लगी? मुझे हक ही क्या किसी से कुछ भी कहने या जानने का? तुम सब तो सिकंदर शाह के वफादार हो ना, इसकी चाकरी करते हो। तो सुन लो, मुझे भी तुम सबकी कोई ज़रूरत नहीं, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। आबरू ने इसे हाथ से पकड़ कर कमरे से बाहर करते खट से दरवाज़ा बंद कर दिया। ड्रेसर के सामने खड़ी बेदर्दी से बालों में ब्रश करने लगी। जब निगाह अपने सरापे पड़ी तो एकदम से सिकंदर शाह की आवाज़ दिमाग में गूंजी।
तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। आबरू को लगा शानिस के कानों में कोई सूर फूंका। नहीं, ये नहीं हो सकता। सिकंदर शाह झूठ बोल रहा है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। वो सियानी अंदाज में चीखती ड्रेसर की सारी चीज़ें ज़मीन बोस करने लगी। जब अंदर की भड़ास अच्छे से निकाल चुकी तो आंसू पहुँचती विंडो के पास आ गए। विंडो खोलने पर सर्द हवा के झोंके ने एक बार फिर से इसे ठुठरा दिया, जिसने विंडो से बाहर घुप अंधेरे में नीचे की तरफ झांका। उफ अल्लाह जी, ये तो बहुत नीचे। अगर मैंने छलांग लगाई तो ज़रूर मेरी को हड्डी पसली टूट जाएगी, और अगर मैं मर गई तो नहीं, अभी तो मैं अम्मी बाबा से भी नहीं मिली, और अगर मरने के बाद भी जालिम शख्स ने मेरी लाश मेरे घर न पहुँचाई तो। सिकंदर शाह इसके पीछे खड़ा, हाथ सीने पर बांधे इसकी बड़बड़ाहट के साथ इसकी एक हरकत को मुलाहिजा कर रहा था। हवा से उठते इसके सिल की बालट के लिए करते बार बार सिकंदर शाह के चेहरे पर मूसा देते। नथनों में पड़ती शैम्पू की तेज़ खुशबू शाह को मदहोश कर रही थी। इससे पहले वो इस लम्हे के शहर में बहक जाए, इसने आबरू के कानों के पास सरगोशी की। खुदकुशी करने का प्लान है क्या? अपने ख्यालों में गुम आबरू बिल्कुल अपने पास आवाज़ पर खौफ से ज़मीन से 2 फुट ऊपर उछली और पीछे खड़े शाह के चौड़े सीने से जा टकराए। शाह की धड़कनें बढ़ने लगी। इसने बहुत मुश्किल से खुद को कोई हरकत करने से रोका। जब आबरू को एहसास हुआ तो खुद इससे दूर, फ़ौरन इससे दूर हुई। सलमा कितनी दफ़ा आ चुकी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? शाह ने इसकी खफ़त मिटाते हुए कहा और टेबल पर खाना लगाने लगा। मुझे नहीं खाना, जाओ यहाँ से। वो गुस्से से चिल्लाई तो शाह ने इसकी किसी भी एहतजाज को खातिर में लाते इसे हाथ से पकड़ते अपने साथ सोफे पर बिठा लिया। क्या आबरू ने से घूरते हुए उठना चाहा, लेकिन शाह ने दोबारा पहलू में गिरा लिया। क्या बदतमीज़ी है, भूख नहीं है मुझे, छोड़ो। शाह ने इसके गुस्से को इग्नोर करते प्लेट में बिरयानी डाल चम्मच भर के इसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हें भूख नहीं है, लेकिन मेरे बेबी को तो बहुत सख्त है ना, सो ये खाना मेरा बेबी खाएगा। आबरू इसकी इतनी खुली गुफ्तगू पर पहले तो शर्म से झेंपी, लेकिन अगले पल इसके चेहरे पर इस्तज़ाहिया मुस्कुराहट फैल गई। ओ बेबी, तुम्हें लगता है सिकंदर शाह के जो कुछ तुम मेरे साथ कर चुके हो, ये जितना मैं सह चुकी हूँ, इसके बाद भी मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी? शट अप आबरू। शाह ने गुस्से से चम्मच प्लेट में पटका तो चावल टेबल पर गिरे। इसने आबरू की इतनी घटिया बात पे मुश्किल खुद को हाथ उठाने से रोका था। नो, गुस्सा क्यों कर रहे हो सिकंदर शाह? तुम क्या समझते हो झूठी हमदर्दी जताओगे तो मैं तुम्हारे बहकावे में आ जाऊंगी? कभी नहीं। भूल है तुम्हारी कि बच्चा इस दुनिया में कभी आएगा। और इस बात पर शाह का हाथ आबरू के चेहरे पर उंगलियों के निशान छोड़ गया और इसे बालों से दबोचे इसके चेहरे पर आंखें गाड़े चिल्लाया तो लहजे में कुछ देर पहले वाली नमी मकफूत थी। बेबी को तुम क्या, तुम्हारे अच्छे भी जन्म देंगे, और ये मेरी आखिरी वार्निंग है। अगर आइंदा तुमने कुछ भी गलत किया, करना तो दूर, अगर गलत का सोचा भी, तो मैं सारे लिहाज बिलायता करके वही सिकंदर शाह बन जाऊंगा जिसे इस दुनिया में अपने सिवा किसी की परवाह नहीं होती। आबरू फटी आंखों से शाह की सुर्ख आंखों में देख रही थी। इसकी सारी तेज तरारी हवा हो गई। हुआ ना दर्द, ऐसा ही दर्द तुमने मेरे माँ बाप को इनकी बेटी छीन कर दिया, और पहले तुम कौन सा मेरे हमदर्द रहे हो? जब फिर से वही सिकंदर शाह बन जाओगे, तुम हमेशा से एक बहुत बुरे और जालिम इंसान थे, और ऐसे ही रहोगे, तुम सिर्फ सितम करो। आबरू के आंसू गालों पर फिसले तो वो रुख मोड़ गई। शाह के दिल के टुकड़े होने लगे। इसने आबरू का चेहरा हाथों में भरते इसका रुख अपनी तरफ किया, लेकिन इसने अपनी निगाहें हनूस फेर रखी थी। शाह को इसके आंसू हर्ट करने लगे। तुम एक बार मेरा एतबार करके तो देखो आबरू, मैं तुम्हारे हर दर्द का मदावा करूँगा। जख्म मैंने दिए तो मरहम भी मैं ही लगाऊंगा। अगर मैं सितम कर रहा हूँ तो मसीहा भी मैं ही बनूंगा। अगर मैं नफरत में हर हद पार कर सकता हूँ तो मोहब्बत। इसने बहुत चाह से अपनी उंगलियों के पोरे से इसके अश्क समेटे थे। सिर्फ एक बार मेरा यकीन कर लो प्लीज़, मैं कभी तुम्हारे यकीन को डगमगाने नहीं दूंगा। आहो तेरा यकीन कर लवे दिन रात तू फिर उन्होंने कभी पेट के तू नाश किया हुए करो कि ना मुझ पर भरोसा। शाह ने इसकी लरसती कामती आंखों में झांकते अपने यकीन का हद लेना चाह। आहो चंगा मार दे जाओ, पहले अपने सारे अपने बगैरती ती इंतहा ला दो तो एंड ते जी मैंने माफ़ करके मेरे ते यकीन करो, लाख लानत है। तो आबरू ने अपना सर नफ़ी में हिला दिया। बोलने की कोशिश में हिलते लब बुरी तरह कपकपा रहे थे। बाज़ गुनाहों ज़्यादतियों की माफ़ी नहीं होती, और मेरा ज़र्फ़ इतना बड़ा नहीं है कि मैं आपको कभी माफ़ कर पाऊँ, कभी नहीं। मुझे अम्मी पापा के पास जाने दे प्लीज़। मैं अगर इस कैद में मज़ीद रही तो मेरा दम, मैं सांस नहीं ले पाऊँगी। इसकी बेबसी इंतहाओं को छू रही थी। आंसू कतार की सूरत रुखसार पर बह रहे थे। हंसी तेरी आंखें, हंसी तेरे आंसू, यही डूब जाने को जी चाहता है। शाह ने बहुत कर्ब से इसे बाहों में फेंचे अपने सीने में छुपा लिया। इसका हर दर्द मिटा देना चाहता था जो बहुत धड़ल्ले से इसके दिल और दिमाग पर काबिज हो चुकी थी। इसे एकदम से खौफ ने चकड़ लिया। अगर इसने मजीद इस पर सख्ती या ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो इस प्यारी सी लड़की को हमेशा हमेशा के लिए खो लेगा, और वो इसकी दूरी सह सकता था, लेकिन इसे खोने से डरता था। मार दे फिर उन्होंने, मैं तो नहीं मारी जावे, आबरू मर जावे। इन्हें नहीं मरना तो यही मर जावे, इन्हों लगे स्वाद आवे पता। यहाँ से जाना चाहती हूँ? शाह ने इसके बालों में हाथ चलाते कर्ब से पूछा तो आबरू ने सरस बात में हिलाया। शाह को इसका दिल बेबस परिंदे की तरह फड़फड़ाता हुआ महसूस हुआ। इसके अंदर बहुत शिद्दत से ख्वाहिश उभरी कि वो इसके दिल पर हाथ रखकर इसकी शोर में चाहती धड़कनों को मामूल पर ले। ओके, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, आज़ाद कर दूंगा तुम्हें इस अनचाहे रिश्ते से। ये पहले तुम्हारे लिए कैद है ना, तो तुम्हें इससे दूर तुम्हारी अपनी खुशियों भरी नगरी में छोड़ूंगा। लेकिन शाह नज़र इसके चेहरे पर गाड़े अपनी आंखों की प्यास बुझा रहा था।
चंद पल की खामोशी थी शाह की गहरी नज़रों का इर्तिकाज़। आबरू ने एक लम्हे को आंखें उठाई, लेकिन इनमें शाह की खुमारलूद निगाहों में झांकने की सकत नहीं थी। इसने आंखें अपनी आरिस पर गिरा ली। आंखें जो उठाए तो मोहब्बत का गुमाऊं, नज़रों को झुकाए तो शिकायत सी लगी। घबराहट में इसके चेहरे पर पसीने की चंद बूंदें नमूदार हुई, जिन्हें शाह बहुत नरमी से साफ किया। लेकिन बेबी आने तक मैं तुम्हें इस पैलेस में ही देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई मामूली सी भी परेशानी भी छूए, और इसका असर मेरे बेबी पर भी हो। तुम हर किस्म की फ़िक्र से आज़ाद अपना और बेबी का बहुत ख्याल रखोगी। प्लीज़, सिर्फ चंद माह की बात है, बेबी आने के बाद तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। ये सिकंदर शाह का वादा है तुमसे। सिर्फ चंद माह मेरे बेबी के लिए दान कर दो प्लीज़। शाह के लहजे के बोझलपन और अफसुर्दगी ने इसे गहरे दुख से दो चार कर दी, और इसे बेबसी से देखती रह गई। अपनी ज़ात के दफ़ा में बोलते लब खुद भी पबस्त होकर रह गए। इसने बहुत मुश्किल से सर को हल्की सी जंबिश दी थी। थैंक यू सो मच आबू। शाह ने एक बार फिर इसे साथ लगाया, चाहत से इसके बालों पर बूसा लिया। अब इसे खुद में समोए से महसूस करा था। आबरू ने भी खुद को आज़ाद करवाने की सही नहीं की। इसने शाह के चौड़े सीने पर ही आंखें मोड़ ली। शाह ने इसकी पुरसकून नींद में खलल न डलने से पूरी रात इसे खुद से लगाए सोफे पर गुजार दी। इसने अपनी गर्म शाल आबरू के गिर्द लपेट रखी थी। वो अपने और शाह के मुश्तरका कमरे में अलमारी में सर्दी अपना ड्रेस निकाल रही थी, जब दरवाजे पर हल्की दस्तक दे के साथ कोई अंदर आया। इसने गर्दन घुमा कर देखा। आप? इसे अंदाज़ा नहीं था ज़ैनब भी इसके कमरे में आएंगी। मैंने सोचा मेरी बेटी तो मुझसे मिलने आई नहीं, क्यों ना मैं खुद ही आपसे मिल लूँ। ज़ैनब भी ने इसके लिए लाया जूस का गिलास आगे बैठते बेड साइड टेबल पर रखता और इसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखती बोली तो आबरू सटपटा गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप प्लीज़ आएँ। आपने हकलाते हुए कहा और इनका हाथ हमें बेड पर बैठा दिया। खुद भी इनके साथ ही टिक गई। इससे मलाल हो रहा था। वो एक बार भी ज़ैनबी से मिलने नहीं गई। कुछ भी था, लेकिन वो बुजुर्ग थी। कैसी है मेरी बेटी? जिंदा हूँ, आबरू ने गोद में रखे हाथों को घूरते जवाब दिया। लहजा स्पार्ट था, वो चाहते हुए भी तलख नहीं हो पाई थी। मायूसी कुफर है बेटा। ज़ैनब बिन इसके बालों में नरमी से हाथ फेरा। आबरू के चेहरे पर एक लम्हे को तंजीम मुस्कुराहट उभर कर गायब हो चुकी थी। बोलो ना, मुझसे बात करो, मैं आपकी भी अम्मा हूँ। जब आपका बोलना कोई मानी नहीं रखता तो खामोश रहना ही बेहतर है। आबरू का उंगलियां मरोड़ना इसके अंदर के इस तरह आपको वास्या कर रहा था। आबरू बेटा, मैं आपका दुख समझती हूँ, क्योंकि मैं खुद इस कर्ब से गुजरी हूँ, और मुझे यकीन है कि जब मेरा बुरा वक्त गुजर गया तो आपका भी नहीं रहेगा। अब मायूसी और दुखों के सब बादल छट जाएंगे और अब सिर्फ मुसरतें ही होंगी। मैं हमेशा अपनी बेटी के साथ हूँ। ज़ैनब भी ने इसे अपनी नरम आगोश में पना दी तो आबरू का ज़बर टूट गया। वो इनके सीने में मुँह छुपा फूट फूट कर रोते एक ही बात कही जा रही थी। अम्मा, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। वो बहुत बुरा है, बहुत जालिम। ज़ैनब भी ने इसे खुलकर रोने दिया। अब इसके दिल का गुबार निकाल लेना चाहती थी। अब चुप हो जाओ, शाबाश, वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी। लो जूस पियो। काफ़ी देर बाद ज़ैनब भी ने ग्लासेस के लबों से लगाया तो आबरू ने इनकार करना चाहा। रिस्क से नाराज़गी नहीं करते, अल्लाह की नेमतों से इनकार करना गुनाह है। पियो, शाबाश। आबरू ने जूस एक ही सांस में ख़त्म करके गिलास ज़ैनब भी को दिया और एक बार फिर सर इनकी गोद में रखे आंखें मूंदे बेड पर दराज हो गई। ज़ैनब भी इसके बालों में हाथ चलाते इसे तकलीफ पहुँचाने लगी। आज काफ़ी दिन बाद ज़फ़र, आशू और बीना आंटी शाह पैलेस में मौजूद थे। सब पहले ज़ैनबी से मिलने आ चुके थे, लेकिन आज संडे होने के बाद शाह ने सबको लंच पर इनवाइट किया था। वो सब लॉन के बिल्कुल वस्त में रखी बड़ी सी गोल मेज़ और इसके गिर्द तरतीब से रखी कुर्सियों पर बैठे खुशकपियों में मसरूफ़ थे। मेज़ खाने की हर किस्म के अनवाउ इक़साम से भरी पड़ी थी। बीना बेगम तो शाह के चेहरे से छलकती खुशी देख कर निहाल हो रही थी। आबरू इन सबसे लाताल्लुक़ कमरे में बंद थी। शाह को इसकी गैर मौजूदगी बहुत खटक रही थी। आहो तू ओंदे एक अख न पावे तो तेरे वाले आके जफ्फियाँ पाए। हद हो गई। भाई भाभी की तबीयत तो ठीक है ना? मतलब अभी तक मिली नहीं। शाह ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इसका तैश मजीद बढ़ गया। इसके चेहरे के उजलात तन गए। आशू की बात बीना बेगम के साथ बातों में मसरूफ़ ज़ैनबी के कानों तक भी पहुंची। इन्होंने शाह की तरफ देखा, जिसकी पुरशिकवा निगाह इन पर ही टिकी थी। इन्होंने सर हल्का सा नफ़ी में हिलाते से कुछ भी सख्त बोलने से रोका। जी आयशा बेटा, आबरू की तबीयत थोड़ी अपसेट थी, मैंने आराम का बोला था, मैं देखती हूँ। अरे अम्मा, आप रहने दें, मैं भाभी को लेकर आती हूँ। भैया खुली फिजा में बैठेंगी तो अच्छा फील करेंगी। आशू तुम भी रहने दो, भाभी खुद ही आ रही है। ज़फ़र और शाह बिल्कुल सामने बैठे। जब ज़फ़र की नज़र अंदर से निकलती है आबरू पर पड़ी। इसे देखकर ज़ैनब और बीना बेगम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट खिली थी। शाह की निगाह इस पर पड़ी तो गोया पलटना भूल गई। आबरू ब्लैक खद्दर की शलवार पर पिंक ब्लैक और ब्राउन कंट्रास्ट खद्दर की शर्ट, जिसकी लंबाई घुटनों से ज़रा ऊपर थी, नफासे से सर पर लिया ब्राउन और ब्लैक चुनरी स्टाइल दुपट्टा और पाँव में फ्लैट जूता पहने छोटे छोटे कदम उठाती लाउन की जानिब भी आ रही थी। फिर भरा भरा सा जिस्म सफ़ेद सुर्ख दूधिया रंग का तो रुखसार पर घुलती लाली को ब्लश लगाया गया। इसके अंदर आई नई तब्दीली और केयर का सबूत थी। इसके पास आने पर नज़रों का ज़ाविया बदलता एक बार फिर ज़फ़र से बातों में मशगूल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। आबरू सबको मुश्तरका सलाम करते बीना बेगम और आशू से मिलती आशू के साथ ही रखी कुर्सी पर बैठ गई। आबरू बेटा कैसी तबीयत अब? जी आंटी ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आबरू हर बार इनके साथ रवा रखे अपने रवैये पर शर्मिंदा होती। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अपने बच्चों को देख रहा बहुत खुश हूँ। शायद देख रहा था आशू हमेशा की तरह बातों में मसरूफ़ थी, जबकि आबरू इसकी बातों का जवाब सिर्फ हूँ हाँ में देती। भाई, ज़फ़र भाई ने आपको बताया कि इन्होंने अपने लिए लड़की पसंद कर लिया। आशू की बात पर कोल्ड ड्रिंक पीते ज़फ़र को ज़ोर का छू लगा तो सबका मुश्तरका कहका पड़ा।
आबरू ने मुंह पर हाथ रखकर खांसते जफर की तरफ देखा तो बेसाख्ता निगाह शाह पर पड़ी जो अपनी निगाहें आबरू पर ही जमाए हुए था। आबरू के देखने पर इसे आंख मारते हल्का सा मुस्कुराया। बेहुदा इंसान। आबरू दिल ही दिल में से गालियों से नमाजती फौरन निगाह फेर गई। इसकी धड़कनों की रफ्तार बढ़ने लगी। अरे कब, कहाँ, कैसे, मुझे क्यों नहीं बताया? शाह के लिए बात बाकी किसी हैरत से कम नहीं थी। जफ़र, इसने जफ़र को खूनख्वार नज़रों से घूरा। ओ फोश शाह, आशु मजाक करिए। नहीं कोई मजाक नहीं है भाई, ये बिल्कुल सच है। मामा आप बताएं ना भाई को, हम बहुत जल्द रिश्ता लेके जाने वाले हैं। भाभी आप भी रेडी रहें, आखिर को आपके इकलौते देवर साहब हैं। जी। आबरू सिर्फ इतना ही कह सकी। जफ़र ने शाह का भयानक रूप देखते ही दौड़ लगा दी। फिर आगे आगे जफ़र और पीछे पीछे शाह था। आशु बिना बेगम ज़ैनब भी के साथ आबरू बिन की इस भागम दौड़ पर खुल कर हंस रही थी। बिलाकर शाह ने जफ़र को जकड़ लिया। अगर ये शख्स इतना जालिम, बेरहम और सितम करना होता तो कितना प्यारा। आबरू खूबसूरत शक्ल सूरत और ड्रेसिंग पर्सनैलिटी के मालिक सिकंदर शाह को दीवानावार देखते सोच रही थी। लेकिन मसला तो सारा वही है ना कि वो सारा जड़ी बगैरतियाँ को तो नवाइयाँ वो बगैरतियाँ ना मालक है। जफ़र और शाह चहलकदमी करते बातों में मसरूफ़ थे। जफ़र इसे रिमी के बारे में बता रहा था जबकि शाह इसकी इस कदर दीवानगी देखते मुस्कुरा रहा था। ख़वातीन सब अंदर आ गई थी। लंच रेडी था। ज़ैनबी ने सब कुछ अपनी निगरानी में बनवाया। सलमा, आशु और आबरू ने मिलकर डाइनिंग टेबल सजाई। शाह और जफ़र भी अंदर आ चुके थे। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। खाने के बाद चाय का दौर चला। आबरू ने सबको चाय सर्व करते आखिरी कप शाह की तरफ बढ़ाया तो जानबूझकर अनजान बना हुआ था। आपकी चाय। आबरू ने दांत पीसते जब चौथी बार मुखातिब किया तो शाह मुतवज्जा हुआ। इसने भरपूर निगाह इस पर डालते कप लेते जानबूझकर इसके हाथ से हाथ टकराया तो आबरू का ज़बत जवाब दे गया। इसने आओ देखा ना ताओ अपना जूता शाह के पाँव पर जोर से मारते अपना बदला चुकता कर दिया। शाह इसकी हरकत पर बिल आ गया। बहुत चंगा है, कोई चांडक मुँह तो भी कोई मार जुती छुती, हद हो गई। आबरू शाह की हरकतें जफ़र की नज़रों से मख्फी नहीं रह सकी। जब हर बार भाभी से मार ही खानी होती तो ऐसी हरकतें करते ही क्यों? जफ़र ने आशु के साथ सोफे पर बैठी आबरू पर निगाह डालते शाह के कान में सरगोशी की तो इसने भरपूर घूरी से नवाजा। हाँ हाय शहजादे, अभी तुम्हारी वाली आई नहीं ना, फिर तुमसे तफसीली पूछूंगा। शाह के सर दा भरने पर जफ़र ने हल्का सा कहका लगाया। काफ़ी देर खुशकपियों के बाद वो लोग इजाज़त लेते बाहर पोर्टिको तक आ गए थे। बहन जी अब मैं आप लोगों की मुंतज़िर रहूँगी। शाह और आबरू बेटी शादी से वापस आ जाए, फिर मैंने हमारे पोते पोती के एजाज़ में पार्टी देनी है। यूँ समझ लें गोद भराई होगी। मीना बेगम का यूँ सबके सामने सरेआम ऐसा कहने पर आबरू खुद में झैम की। शाह ने इसका घबराना बहुत चाहत से देखा था। ऑफ कोर्स आंटी, बेबी के बाबा तो रेडी हैं। शाह ने आबरू को निगाहों के हसार में लेते शरारत से कहा तो सब खुलकर हंस दिए। डफर, गोद भराई तुम्हारी नहीं आबरू भाभी की होनी है, खालिस्तान लेडीज़ रस्में होती हैं। जफ़र के बुजुर्गाना तर्ज गुफ्तगू पर सब हंस दिए। लो ये क्या बात हुई, क्या मैं बाबा नहीं हूँ ना? तो ये रस्म सिर्फ लेडीज़ के हिस्से में क्यों? आबरू इन सब की इतनी खुल्लम खुल्ला गुफ्तगू पर शर्म से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। उफ़, एक से बढ़कर एक अलग किस्म के नमूना यहाँ मौजूद है, वो सिर्फ दिल में सोच सकते। चल शैतान। ज़ैनबी ने आबरू का कतराना देखकर शाह के कंधे पर चपत लगाई और यूँ एक खुशगवार दिन के इख्तिताम पर जफ़र और फैमिली अपने अंदर बहुत से हसीन लम्हे कैद करते शाह पहले से रुखसत हुए थे। गाड़ी बाहर निकलते तक वो तीनों वहीं खड़े। गाड़ी नज़रों से ओझल हुई तो ज़ैनबी ने अपने कदम अंदर बढ़ा लिया। आबरू ने भी इनकी पैरवी में अपने कदम बढ़ाए थे जब शाह ने सूरत से इसकी कलाई पकड़े अपनी तरफ खींचा तो वह तवाज़ुन बरकरार न रखते इसके चौड़े सीने से आ लगी। सिकंदर शाह, तुम्हारी बदतमीज़ियाँ आखिर कब ख़त्म होगी? आबरू से खूनख्वार नज़रों से घूरते तड़क कर बोली। और मैं तुम्हारे सुबह वाले रवैये बिहेवियर को क्या समझूँ, बदतमीज़ी, हठधर्मी या पागलपन? शाह ने इसकी कमर के गिर्द बाजू हमाल के इसे मजीद खुद से करीब करते सर्द लहजे में पूछा। सिकंदर शाह, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ मुझे कोई सरोकारी तुम्हारी इन सो कॉल्ड। बाकी का जुमला शाह की घुरी और सख्त गिरफ्त पर इसके मुंह में दम तोड़ गया। छोड़ो मुझे सिकंदर शाह, दर्द हो रहा है। इसके चेहरे पर नुमाया दर्द के असरात थे या खूबसूरत आंखों से छलकते पानी का असर। शाह ने फ़ौरन गिरफ्त ढीली करते पैंतरा बदला। गुड गर्ल, इससे आगे की तुम्हारी ज़ुबान बात मुकम्मल ना ही हो तो अच्छा, वरना। खैर शेरनी, तुम मुझे देखते हुए चुपके चुपके मुस्कुरा रही थी, कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया? शाह ने इसके चेहरे पर आई बालों की लट से खेलते हुए पूछा तो आबरू जी जान से जल गई। तुम इन्हीं खुशफहमियों से मरोगे सिकंदर शाह। आबरू ने इसका हाथ झटकना चाहा लेकिन शाह ने इसे पुश्त पर ले जाते अपने हसार में कैद कर लिया। खैर मैं तो अपनी ज़िंदगी जीने का कायल हूँ, इतना तो तुम मुझे जान ही गई होगी जाने मन। और कोई प्यार वाला चक्कर भी है तो माय डियर शेरनी, इसमें कोई मजाक की खैस बात भी नहीं। भाई सारे का सारा तुम्हारा हो, तुम पूरा हक रखती हो मुझे देखने, प्यार करने बल्कि छूने का भी। शाह की पुरशौक और मोहब्बत भरी नज़रें इसके खूबसूरत मुखड़े से होती इसकी गर्दन में मौजूद अपने नाप के पेंडेंट का तवाफ़ करने लगी। आबरू ने आंखों की इल्तिजा से घबराती फ़ौरन अपना चेहरा फेर की। सिकंदर शाह, मुझे यहाँ रहने के लिए तुमने जो वादे किए थे तुम इनसे मुकर रहे हो। आबरू ने इसकी वारफ के ऊपर बंद बांधना चाहा, बोलना मुश्किल लग रहा था। नहीं, मैं अहद निभाने वालों में से हूँ मिसेस। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने ये भी कहा था कि जब तक तुम पैलेस में मौजूद हो सिर्फ और सिर्फ मेरी मलकियत हो और मैं जब जैसे अपनी मलकियत का इस्तेमाल करूँ तुम मुझे रोक नहीं सकती। पापा प्लीज़ मुझे जाने दे। आबरू इसकी दिलनशी नज़रों की ताब न लाते हुए घबरा कर बोली। और अगर मैं ना जाने दूँ? शाह इसकी हालत से भरपूर हंस उठा रहा था। पापा प्लीज़ मुझे भूख नहीं, बेबी को भूख लगी है।
आबरू ने रवानगी में जो भी मुंह में फ़ौरन बोलती है। जब अपनी कही हुई बात का एहसास हुआ तो वक्त हाथों से फिसल चुका था। बात मुंह से निकलती शाह के दिल में हलचल मचा गई। शाह का पलक शगाफ कहकर इसे झेपने पर मजबूर कर गया। अच्छा बहाना फरार का, आज तो जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार हाई मुश्किल है, ज़रा सोच के। ओके। शाह ने अपने दहकते हुए लब इसकी पेशानी पर रखकर ग्रीफ ढीली की तो फरार मिलते ही आबरू ने अंदर की तरफ दौड़ लगा। इसे लगा अगर पीछे देखेगी तो शाह की लो देती आंखें से पत्थर का कर देंगे। कमीना बेहुदा इंसान। तन्हा वो आए जाए ये है शान के खिलाफ, आना हया के साथ जाना अदा के साथ। जब मर जाओ के बेगैरत जा, नहीं तो जहर लग रहा, मेरी तो रोमांटिक में तभी जहर लग रहा है। फरहान नामुमकिन है डियर मिसेस। आखिर सिकंदर शाह के दिल पर कब्जा जमाने की कोशिश की और सिकंदर शाह की चोरी करने वाले इतनी आसानी से इसके चंगुल से निकल नहीं पाए। नामुमकिन। सिकंदर शाह मारे ही जावे तो फिर बेवा होकर तो कल्लू निकल जाएगा तो चुंगल दे विचों। तुमने तो फिर दिल चुराने की गुस्ताखी की है। शाह की पुरशोक नजरों ने अंदर तक इसका पीछा किया। आबरू ज़मान हर गुजरते दिन के साथ इसके दिल और दिमाग पर क़यामत ढा रही थी और पूरी दुनिया को खातिर में न लाने वाला सिकंदर शाह एक छोटी सी लड़की से हारा था और ये हार वो खुशी खुशी कबूल करने के लिए तैयार था। हर गुजरते दिन के साथ जहाँ सिकंदर शाह की रफ्तियाँ बढ़ती जा रही थी वहीं आबरू का लहजा सर्द और बेइतनाइयाँ अरूज पर थी। आबरू जितना इससे इज्तनाब बढ़ती सिकंदर शाह इसके पास आने अपनी जानिब माइल करने की कोशिश करता। आबरू इसके करीब आने से गुरेज़ां रहती। सिकंदर शाह की लो देती आंखें हर लम्हे से अपने हसार में बांधने की कोशिश करती इसे बेचैन रखती थी। दिन भर बारिश के बाद हर तरफ निखरा मंजर तबीयत पर खुशगवार असर डाल रहा था। ज़ैनब भी कमरे में असर की नमाज अदा करी थी जबकि आबरू नमाज के बाद लॉन में आ गई थी। वो जूते उतार कर ओस पड़ी घास पर नंगे पाँव चलती दिलकश मौसम की ताजगी अपने अंदर उतार रही थी। चंद लम्हों के लिए सही, लेकिन इसकी सारी कसाफत कहीं दूर होगी। आबरू बीबी साहब का फ़ोन है। अपने ख्यालों में गुमती सलमा के पैगाम में इसका मूड फ़ौरन बिगड़ा। मुँह जैसे हलक तक कड़वा हो गया। सलमा, जब तुम्हें पता है कि हर रोज़ मेरा एक ही जवाब होता है कि नहीं करनी बात, तो फिर क्यों आ जाती है उस बेहुदा शख्स का नाम लेकर मेरा दिमाग खाने और अपनी इंसल्ट करवाने। आबरू सर झुका खड़ी सलमा को घूरते तड़क कर बोली तो दूसरी तरफ मोबाइल पर मौजूद सिकंदर शाह का दिल चाकू जादू की छड़ी घुमाकर फ़ौरन हज़ारिम हसीना को अपने सामने लाकर एक थप्पड़ सीध करे ताकि इसका बिगड़ा और भेजा दुरुस्त जगह पर आए। पहले तो तेन थप्पड़ा छितरा दी कमी है। वो आबरू के लिए मोबाइल लेकर आया था। दिन में कई बार कॉल करते लेकिन मैडम उठाना तो अपनी शान के खिलाफ गुस्ताखी समझती। उल्टा हर बार सलमा की बेइज्जत अफसाई की जाती। बीबी साहब मोबाइल पर। सलमा ने डरते हुए मोबाइल आगे किया तो आबरू ने मोबाइल झपटते से हाथ के इशारे से जाने का मोबाइल कान से लगा। क्या मसला है? बगैर कोई बकवास के 10 मिनट में रेडी होकर गेट तक आओ। अगर 1 मिनट भी लेट हुई तो जिस हुलिये में भी होगी मैं गार्ड के सामने तुम्हें गोद में उठाकर गाड़ी तक ले आऊँगा। शाह ने बगैर लगी लपटी रखे सर्द लहजे में कहकर कॉल बंद कर दी। कमीना इंसान, बड़ा है ऑर्डर जारी करने वाला। सलमा, सलमा, इसने वहीं खड़े खड़े इसने हाँक लगाई तो सलमा बोतल की जिनकी तरह हाजिर हुई। मेरी शाल लेके आओ फ़ौरन। जी बीबी। ठीक 8 मिनट बाद आबरू शाल ओढ़े गेट पर मौजूद थी। गाड़ी के हॉर्न पर आगे बढ़ी से शाह ने इसके लिए फ्रंट डोर ओपन किया तो बैठ मूड बहुत बुरी तरह ऑफ हो चुका था। कैसी हो? गाड़ी आगे बढ़ाते शाह ने बहुत प्यार से पूछा। थोड़ी देर पहले वही सद मोहरी मकबूल थी। आबरू ने बगैर जवाब दिए सिर्फ घूरने पर इक्तफा किया तो शाह ने कंधे उचका दिए। इसका खफा खफा चेहरा देखकर शाह को बेख्तियार इस पर टूट कर प्यार आया। ज़रूरी था जाने मन, तुम्हें सीधी ज़बान समझ में तो आती नहीं। तुम्हें कितनी दफ़ा कह चुकी सिकंदर शाह मुझे से वाहियात नामों से मत पुकारा करो। वो पूरी की पूरी इसकी तरफ मुड़ती चीखी। इसका गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था। शाह ने एक लम्हे के लिए बेख्तियार दोनों हाथ कान पर रखे और मुस्कुराती। और इससे भी पहले मैंने कभी तुम्हारी कोई बात मानी है? नहीं ना, तो फिर क्यों नाहक अपनी एनर्जी वेस्ट करती हो? अगर इतना सोचोगी तो फिर मेरा बेबी। बस बस सिकंदर शाह, इतने गहराई में जाने की ज़रूरत तुम्हें भी नहीं है। इससे पहले शाह मजीद गुलफशानी करता आबरू भड़की। इसे सिकंदर शाह के चेहरे पर खिलती मुस्कुराहट जहर लगती थी। इसका दिल चाहा वो इसका खूबसूरत चेहरा नोच डाले। आबरू के भड़कने पर शाह ने खामोश रहने में आफियत जानी, वरना दौरान जंग वो अपना बीपी हाई कर लेती। हम कहाँ जा रहे हैं? सद मोहरी से पूछा। शॉपिंग के लिए। पहले मेरे पास बहुत ड्रेसेस हैं। तो क्या हुआ, और ले लेना अपनी बेबी की शॉपिंग। और वैसे भी शादी के लिए तुम्हें जो ड्रेसेस ऑर्डर करने इनके लिए तुम्हारा होना ज़रूरी है। मैंने किसी की शादी पर नहीं जा रहा और ना ही मैं हैवी ड्रेसेस कभी पहनती हूँ, यानी हद है। मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं, हर बात में अपना हुक्मनामा। मैंने राय नहीं मांगी, सिर्फ बताया। शाह का मूड फ़ौरन बदलते देखकर आबरू खामोश होगी। जानती थी बोलना फजूल है। सिकंदर शाह ने शादी के हर फंक्शन के लिहाज से अपनी चॉइस के टॉप ड्रेसेस ऑर्डर किए थे। वहाँ से होते इसने आबरू को जूते, कुछ कैजुअल ड्रेसेस और इसकी ज़रूरत की हर चीज़ दिलाई। इसने कभी भी किसी भी चीज़ में आबरू की पसंद पूछना ज़रूरी नहीं समझा। वो किसी मुजस्मे की तरह बिल्कुल खामोशी के साथ चली जा रही थी। आबरू के थक जाने के ख्याल से सिकंदर शाह ने 1 घंटे में सब कुछ लिया और वापसी के लिए मॉल से निकल रहे थे। सारे शॉपिंग मॉल्स वो पहली गाड़ी में रखवा चुका था। आबरू इसके पीछे पीछे चल रही थी जब किसी ने इसे पीछे से पुकारा। आबरू ज़मान। नाम की पुकार पर आबरू के कदम रुक गए। वो वापस पलटी तो सिकंदर शाह भी इसके साथ ही पलटा। आबरू ज़मान, तुम? सामने वाली शख्सियत को देखा आबरू की आंखें हैरत बेयकीनी और खौफ से फैल गई। केड़ी है सामने शख्सियत? उन केड़ा आ गया सामने। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। क्या लगता है किसने आबरू को पीछे से पुकारा? तो अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन हम वीडियो को एंड करेंगे।
निगार हाशमी अमेजिंग, थैंक यू। बिया ज़बरदस्त यार, बाकी के एपिसोड भी जल्दी जल्दी अपलोड कर दें, बहुत अच्छा नावल है जी। इंशाल्लाह बस डेली एपिसोड आ रही है, कुछ ही एपिसोड रह गई हैं अब इस नावल की। शैलो वेरी अब्यूसिव हीरो शाह, आई लव हीरा एंड साद कपल, हया नॉट हीरा। हीरो तो वाकई बहुत बेगैरत किस्म का पाया गया है इस नावल ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ तक पसंद नहीं आया, तो उम्मीद है आखिरी किस्त तक पसंद नहीं आएगा। अयान मलिक अमेजिंग एपिसोड, थैंक यू। चौधरी अब्दुल्ला भेजते नावल, किधर भेजूँ? अच्छा नेक्स्ट एपिसोड का अगर कह रही हैं तो बस वो ऑन द वे है, हो रही है अपलोड। उस्मान कमालिया एम मुनीब, नावल तो ठीक है लेकिन एम भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, 100 से ऊपर ही होते हैं। ऐसा तो किसी नावल में एम भी नहीं लगते। मैनू नहीं पता कि ऐसा की क्या चक्कर है या क्या राज है इसमें, आई डोंट नो। निगार हाशमी, आई हेट नावल्स के सारा जुल्म करके एंड पे सब माफ़, सो अनफेयर। एंड ते माफ़ी तो मेरे भी पल्ले नहीं पैंदी। फिर आप वो सलार वाले नावल की बात करिए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा जालम किस्म का हीरो होगा सी, बेगैरत। जितनी गालियाँ उसने खाई थी ये उसकी कंपैटिबल गालियाँ इसने खाई, लेकिन उसने फिर भी ज़्यादा गालियाँ खाई थी। सिकंदर शाह से भी ज़्यादा गंदा था वो। मूसा सईद अना शायद, राइट। आई एम वेटिंग फॉर नेक्स्ट एपिसोड, डेट कब आएगी? बस कमेंट सेशन करके वीडियो एंड कर रही हूँ, जल्दी आएगी। याशी चौधरी, नेक्स्ट एपी कब आएगी डियर? बस आ रही है, रास्ते में है। अब्दुल्ला दा GR8, नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच जी। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी एपिसोड भी और कमेंट सेशन भी अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसे लगी आपको एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। कौन होगा उसके पीछे जिसने आबुज़मान को पुकारा है? कौन है ऐसा बंदा? तो आपको क्या लगता है? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। आज कमेंट सेशन बहुत कम था क्योंकि बहुत कम लोगों ने कमेंट्स किए। किधर हुआ क्या हुआ, किधर गए मेरे लिसनर्स? किधर भाग जाते हैं यार? बार बार मुझे पकड़ पकड़ के होश दिलवाना पड़ता है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो किधर हैं आप लोग? बाकी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हाल ही में मैंने यही आ रहा है कि 60% अनसब्सक्राइब लोग हैं चैनल पे जो मोस्टली सुनते हैं नावल्स, और 40% सब्सक्राइब्ड हैं। तो जो 60% है ना वो भी सब्सक्राइब कर दो चैनल, बड़ी मेहरबानी होएगी। तो अभी ऐसा है कि आपको जल्दी जल्दी नावल की एपिसोड देनी है, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।